So in our last class yesterday, already we have started our class on linear nonlinearity. Okay, you have to find out the whether the system is linear and nonlinear. Have you gone through the notes? Last day I had supplied the notes in your Google Classroom. Have you studied? आज थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं, फिर भी थोड़ा कोशिश करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल से. ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो बोलो. तो ये शायद हो गया था क्या, एक्स ऑफ टी क्यू ऑफ साइन टी. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर. ओके, नाउ ध्यान से सुनो. देखो, वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी. ये सिस्टम का रेस्पॉन्स है. You have to find out whether this given system is linear or non-linear. That you have to find out. Okay. So what is the condition to test whether the system is linear or non-linear? This is the condition. If that follows, then system is linear. What is that? Alpha x1t plus beta x2t. Okay, that should be equal to alpha y1t plus beta y2t. तो ये है कंडीशन you have to fulfill. So your yt is given, you have to find out y1t, you have to find out y2t, then you multiply y1t with alpha and beta with y2t, then add them. That is one expression. Okay, this is the first thing for right hand side के लिए. और इधर लेफ्ट हैंड साइड ये है अल्फा x1t है एंड बीटा x2t है. तो x1t क्या है? इंडिविजुअल इनपुट है. x2 क्या है? इंडिविजुअल इनपुट है. तो तुम क्या करोगे? x1 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, x2 के साथ बीटा मल्टीप्लाई करोगे. नाउ दैट विल बी योर न्यू इनपुट. व्हाट इज द न्यू इनपुट? अल्फा x1t plus beta x2t. This is your new input. For this new input, you will get the output definitely, because there is a relation, input output relation is there. What is the relation? Yt is equal to x of sin t. Now देखो अंदर में t नहीं है, sin t है. Okay, so x of sin t. तो ये है तुम्हारा इनपुट आउटपुट का रिलेशन. Now once you have the input as this, you apply this input to this expression and you will get the output expression. That output expression, due to this input, what you get the output, that output and this summation output, if both are equal, then we can say easily the system is linear. This is the way of finding the solution. Now how to start? You find out y1t from right hand side से शुरू करो. You find out y1t. So yt is this. So what should be the y1t? I have written very clearly. y1t is equal to x1 sin t. y2t is equal to x2 sin t. So a y1t a y2t मिल गया. ध्यान से सुनो सब लोग, जिसका प्रॉब्लम होगा बोलिएगा. Now क्या करोगे? क्या है? अल्फा y1t and you will do beta y2t. So I have multiplied alpha with y1t and beta with y2t. Then we have added. So ultimately we are getting alpha. देखो y1 क्या है? x1 है. So alpha x1 sin t plus beta x2 sin t. हो गया. ये तुम्हारा राइट हैंड साइड मिल गया. नाउ दिस राइट हैंड साइड को हम लोग y3t बोल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी. y3t is equal to now alpha x1 sin t
प्लस बीटा x2 sin t। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड मिल गया। ना मैंने क्या बोला, इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है x1 को और बीटा को x2 से, देन ऐड देम। तो इसलिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सो नया इनपुट क्या हो गया, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t, दिस इज आवर न्यू input x3t। so for this new input we will have new output। so x3-t के लिए आउटपुट क्या होगा ना, y3-t होगा। what is the input output relation, yt is equal to x sin t। so y3-t क्या होगा, x3 sin t। तो देखो y3-t is equal to क्या मिला हम लोगों को, x3-t sin t मिल गया। तो ये है तुम्हारा न्यू आउटपुट। सो x3 क्या है, ये है। सो वी आर putting the value of x3 here। so ultimately the new output for new input, what we get, alpha x1 sin t plus beta x2 sin t, that is your new output for new input के लिए when the inputs are additive। तो एक दो, ये देखो दो एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पहले निकल था एंड इनपुट के लिए, न्यू इनपुट के लिए हम लोग वी गॉट द न्यू आउटपुट। सो बोथ द आउटपुट्स आर सी हियर, बोथ द आउटपुट्स आर सेम, सो दैट्स व्हाई द सिस्टम इज लीनियर। y3t इज इक्वल टू y3t, y3-t हो गया। तो हम लोग एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी एक साथ में फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी का कॉम्बाइन रिलेशन है, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाइड है, बीटा मल्टीप्लाइड है एंड बोथ आर समिंग है, इसलिए एडिटिविटी एंड द होमोजेनिटी बोथ द रिलेशन साइमल्टेनियसली showing here। so this is the composite form, homogeneity proof and the your additivity proof। once the system satisfies homogeneity and the your additivity, system is linear। तो बोलो, किसी को भी डाउट हो तो बोलो। दिस इज द वे टू हैव द सिस्टम लिनियर। सर सर वन टाइम सर इक्वेशन 1 सर, एक इक्वेशन 1 एक बार सर बताइएगा ना सर एक टाइम। ये वाला इक्वेशन 1, ओके। नाउ देखो इक्वेशन 1, तो राइट साइड में क्या है, ये तुमको प्रूव करने हैं, ये इनपुट होगा तो आउटपुट भी ये होगा, एंड दिस आउटपुट जो होगा और ये इनपुट अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट होगा वो दोनों सेम होगा। तो देखो ना yt तो दिया है इधर, yt इक्वल टू x sin t है, तो तुम बोलो y1t कैसे निकाल लेगा, yt इज दिस, सो y1t क्या होगा, x1 sin t, y2 क्या होगा, y2t इक्वल x2 sin t होगा। तो राइट साइड पाने के लिए तुम क्या करोगे, y1 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करोगे और y2 के साथ बीटा मल्टीप्लाई करोगे, देन क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये हम लोग कर रहे हैं अल्फा y1t प्लस बीटा y2t, अल्फा 1 का वैल्यू इधर है x1 sin t और बीटा इंटू y2 का वैल्यू किधर कितना है, x2 sin t। सो ये है तुम्हारा राइट साइड का रिजल्ट। राइट साइड का जो है हम लोग के पास ये मिल गया, दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग नाउ, दैट इज y3। ये जो नया एक्सप्रेशन हो गया है एडिशन के बाद, सो हम लोग y3t बोल रहे हैं। दैट मींस अल्फा y1t प्लस बीटा y2t इज इक्वल टू y3t हम लोग बोल रहे हैं। y3t इज इक्वल टू अल्फा y1t प्लस बीटा y2t। y1 का वैल्यू मिल गया, y2 का वैल्यू मिल गया, सो पुटिंग ए y1 और y2 वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये नंबर 1 है, तो इसको रख दो। दूसरा क्या करनी है, लेफ्ट साइड में देखो x1t निकलना है, उसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई करना है, x2t है तुम्हारे पास, उसके साथ बीटा मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के पास ये क्या होगा, ये न्यू इनपुट हो गया है कि नहीं, x1 है इधर, x2t है, तो ये न्यू इनपुट है। तो तुम्हारा जब न्यू इनपुट है, ये न्यू इनपुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, x3-t बोल रहे हैं। तो x3t जब तुम्हारा न्यू इनपुट मिल गया तो तुम्हारे लिए भी वो न्यू आउटपुट भी होगा। सो न्यू आउटपुट भी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, y3 इक्वल टू x3 sin t, बिकॉज हम लोग के पास इनपुट आउटपुट रिलेशन है, yt इज इक्वल टू x sin t। ओके, सो
x3 डैश होने से क्या होगा, y3 डैश t इज इक्वल टू x3 डैश sin t होगा। और x3 डैश का वैल्यू क्या है, ये है x1 x2, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे अल्फा x1 sin t प्लस बीटा x2 sin t। तो ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर एक्सप्रेशन हो गया। ये 2 नंबर, एक नंबर देखो सेम टू सेम है, इसलिए द सिस्टम इज लीनियर। बोलो धीरेन्द्र, सभी को मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, क्लियर सर। क्लियर हो गया ना? ये एक्सप्रेशन जो पहले जो है ये तुमको दिमाग में रखना है। जब भाई 1 1 निकाल लो, y2 निकालो, y के 1 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करो, y2 के साथ बीटा मल्टीप्लाई करो, ऐड देन इसको नया एक्सप्रेशन नाम दो y3 t। इनपुट को क्या करोगे, x तुम्हारे पास x1 इनपुट है, x2 इनपुट है, x1 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करो, x2 के साथ बीटा मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करोगे उसको ऐड करो। तो ये न्यू इनपुट हो गया। तो न्यू इनपुट के लिए भी तुम्हारा न्यू आउटपुट होगा। वो न्यू आउटपुट और पहले वाला जो आउटपुट था, हाँ, न्यू आउटपुट एंड पहले वाला जो आउटपुट है दोनों समान हो गया, तो ये लीनियर हो गया। तो इसी तरह हम लोग और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये भी देखो yt इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर टी। तो तुम क्या करोगे, x1 के लिए y1 t निकल गया, y2 निकल गया। सो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, एक एक करके यहाँ से निकल कर रहे हैं। एडिटिविटी पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद होमोजेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो तुम जिस जो चाहे अलग अलग करके एडिटिविटी प्रूव करो, फिर होमोजेनिटी प्रूव करो, और नहीं तो एक साथ में एडिटिविटी होमोजेनिटी, एज यू विश, एज यू लाइक। ओके, एक साथ में तुम कंपोजिट फॉर्म भी कर सकते हो और अलग अलग से भी तुम कर सकते हो, बारी बारी से भी कर सकते हो। ये एडिटिविटी है, ये होमोजेनिटी। तो ध्यान से देखो घर में, ठीक है। तो देखो ये बहुत सारा मैं कर दिया, वाई टी एक्स ऑफ टी क्यू, वाई टी एक्स ऑफ साइन टी, वाई टी एक्स ऑफ ई टू द पावर टी, ये जितने सारे हैं सभी लीनियर है, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो वाई टी इजकल टू साइन टी इंटू एक्स टी। तुम लोग वाई टी इजकल टू एक्स टी और साइन एक्स टी ऑफ साइन टी, और ये पहले तुम फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे एक्स ऑफ साइन टी, बट यहाँ पे क्या है, दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, साइन टी एक्स टी। इनपुट क्या है, एक्स टी है, इसके साथ साइन टी ये स्केलर मल्टीप्लाइड है। So when the system response is some kind of that, yt is equal to sin t into xt, now you have to find out when, बोलो। यहाँ पर जो साइन टी है वो या तो अल्फा या तो बीटा होगा। नहीं, ये रिलेशन है, इनपुट आउटपुट के साथ ये रिलेशन है। अल्फा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये पहले क्या था, सिंगल था, एक्स ऑफ साइन टी था, एक्स ऑफ टी, ये चेंज था। ये के थोड़ा अलग तरीका है, साइन टी विद एक्स टी के साथ साइन टी मल्टीप्लाई है। सर एक और बार सर, सर एक और बार रिपीट कीजिएगा सर, आपका आवाज थोड़ा देर कटा था सर। अच्छा, जो मैंने बोला ये 1 2 3 मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड वी प्रूव दीज आर ऑल लीनियर सिस्टम है। तो मैं अब जो ये जो सिस्टम रेस्पॉन्स में ले रहा हूँ, तो इसका रेस्पॉन्स थोड़ा अलग है। ये क्या है, देखो yt इज इक्वल टू साइन टी इंटू एक्स टी है। ये जब हम लोग चूज करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे फाइंड आउट करेंगे ये कौन सा है, लीनियर है और नॉन लीनियर है। तो ये फॉर्मूला है, मैंने तो बोला, ये ध्यान से रखिए, कभी मैं टॉप पेज में तुम लिखो जो मैंने बोला, अभी बोला, अल्फा x1 t प्लस बीटा x2 t। ओके, ये तुम्हारा नया इनपुट होगा, इसके लिए तुमको इनपुट आउटपुट निकालनी है, और जो डायरेक्ट जो आउटपुट है अल्फा y1 t प्लस बीटा y2 t, ये तुमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या किया, yt इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी, तो y1 t फाइंड आउट करो। पहले हम लोग फाइंड आउट y1 t दैट इज साइन टी x1 t, y2 t साइन टी x2 t। सो y1 एंड y2 तुम्हारा मिल गया। सो अल्फा y1 ओके, अल्फा y1 t प्लस बीटा y2 तुमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो अल्फा y1 t प्लस बीटा y2, राइट हैंड साइड को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो नाम क्या दिए हम लोग, y3t। मैं बोल रहा हूँ ना, ये नया एक्सप्रेशन दो,
फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड y3t इज इक्वल टू अल्फा y1t प्लस बीटा y2, ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो y1 तुम्हारा पास है, y2 का वैल्यू तुम्हारा पास है। नाउ गेट द वैल्यू ऑफ y1t, y2t, व्हाट वी हैव, these are the values we have put here, then we got this sort of expression, sin t is equal to alpha x1t plus beta x2t, this is the expression what we get for right hand side। तो ये एक नंबर एक्सप्रेशन है। नाउ तुमको क्या मैंने बोला, इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, सो x3 डैश t इज इक्वल टू क्या होगा, x3 डैश t इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t, तुम तो जानती हो ये। सो y3 डैश क्या होगा, तुम्हारे पास रिलेशन है इनपुट आउटपुट, सो y3 डैश t इज इक्वल टू क्या होगा, y3 डैश t इज इक्वल टू sin t इनटू x3 डैश t, x3 डैश का वैल्यू क्या है, ये है, सो पुट द वैल्यू ऑफ x3 डैश t, so we have put here the value of x3 dash t, and ultimately we got sin t is equal to alpha x1t plus beta x2t, which is nothing but the expression number 2। Now see, both the equations are written here, equation 1 and equation 2 both are similar, and as they are similar, hence the system is linear। So when the system is some kind of dash cos t xt, sin t xt, then also system is linear। मैं different टाइप का सिग्नल ले रहा हूँ एंड वी आर गेटिंग द कंक्लूजन, ओके, वी आर गेटिंग द कंक्लूजन, व्हेन द सर सिस्टम इज कैन यू लिनियर। स्लो सर बोलो बोलो, सर कैन यू शो सर प्रीवियस स्लाइड सर, ये वाला, ये वाला और पहला सा, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये वाला। नो सर नो सर, सर जो sin t x t सर वो वाला सर, वही वाला सर देख रहा था, बस स्लाइड देख रहा था सर, वो वाला सॉल्यूशन। हाँ, ये तो साइन टेक्स्ट ही है। तो ये क्या है, देखो राइट हैंड साइड पहले हम लोग निकाल कर रहे हैं, अल्फा y1t प्लस बीटा y2 तुमको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट। तो y1t y2t तुम तो फाइंड आउट कर चुके हो, सो y1 से अल्फा मल्टीप्लाई करो, y2 से बीटा मल्टीप्लाई करो, देन मेक देम ऐड, सो ऐड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये है नंबर 1 इक्वेशन। नाउ इनपुट तुमको न्यू इनपुट लेना है, क्या है, ये है, मैंने बोला ना अल्फा x1t प्लस बीटा x2t, ये देखो फॉर्मूला अल्फा x1t बीटा x2t, तो ये है तुम्हारा न्यू एक्सप्रेशन। हर टाइम तो हम लोग यही कर रहे हैं, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t, दैट इज योर न्यू इनपुट। न्यू इनपुट के लिए तुम न्यू आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, सो न्यू इनपुट के लिए न्यू आउटपुट क्या है, y3 डैश t है, फॉर्मूला क्या है, yt, when xt is yt, when x3 dash t, then that should be y3 dash t, it's similar। so x3 dash t के लिए आउटपुट क्या होगा, y3 dash t, so y3 dash t is equal to sin t into x3 dash t, x3 dash t इनपुट है इसलिए आउटपुट y3 dash t हो गया, तो sin t as it is है, x3 dash t का वैल्यू तुम्हारे पास है, ये पुट कर दो यहाँ पे। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारा 2 नंबर एक्सप्रेशन है, ये 1 नंबर है, both the equations are similar as both are equal, that means homogeneity and additivity are satisfying here, so the system is linear। okay, तो तुमको घर में ये प्रैक्टिस करना है। Yes, sir. मेरा सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तुम्हारे पास हूँ, टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन ये तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं ये प्रैक्टिस करके यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, तुम लोग कभी भी नहीं किए हैं। और ये जो मैंने तुमको नोट दे रहा हूँ ना, किसी को बुक तुम्हारे पास जो जिस बुक हो कभी भी नहीं मिलेगा ये सब। मैं बहुत मेहनत करके ये नोट बना रहा हूँ तुम्हारे के लिए, कभी एक बुक में ये नहीं होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल तुम तो देख रहे हो, ये और एक एक्सप्रेशन है, देखो yt इज इक्वल टू 4 ऑफ xt, ये क्या है, 4 दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। नाउ देखो ये लीनियर है कि नहीं, सो y1t फाइंड आउट करो, 4x1t, y2t 4x2t, ये तुम क्या करोगे, अल्फा y1t प्लस अल्फा बीटा y2t ऐड करोगे, दैट विल बी y3t। ये मुख में हो जाएगा, बोल के हो जाएगा, हो गया। ये बोलो नाउ न्यू इनपुट क्या होगा, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t, दैट इज योर x3 डैश t होगा, ठीक है।
तो y3 मिल हो गया अल्फा y1 t प्लस बीटा y2 के लिए तुम्हारा एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ न्यू एक्सप्रेशन क्या है देखो ना, बहुत ही सिंपल सा है ये प्रॉब्लम। x3 डैश t क्या है, अल्फा x1 t प्लस बीटा x2 t, ये x3 डैश t हो गया। x3 डैश t के लिए तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, ये तो एक्सप्रेशन है। सो y3 डैश t इज इक्वल टू 4x3 डैश t, y3 डैश t इज इक्वल टू 4x3 डैश t। 4x3 डैश t क्या है, तुम्हारा पास में, तुम्हारा हाथ में है, तुम लिख दो x3 डैश t का वैल्यू, ये है x3 डैश t का वैल्यू। That is the two expression, this is the one expression, both are equal, so that is the system is linear. Now देखो conclusion क्या है, देखो ध्यान से, yt is equal to x of t cube, yt is equal to x of sin t, yt is equal to x of et, yt is equal to x of log t, log t मैंने नहीं किया, तुम घर में करो, ये भी linear होगा। yt is equal to t into xt, ये भी हम लोग कर चुके हैं। yt is equal to sin t xt हम लोग कर चुके हैं। yt is equal to 4xt हम लोग कर चुके हैं। ये भी linear है, linear, ठीक है। ये जब तुम करोगे yt is equal to माइनस इन्फिनिटी टू 2 x टाउ डी टाउ, ये भी linear है, ये भी linear है। yt is equal to dx dt, so integral और differential these are also linear। तो तुम्हारे साथ क्वेश्चन आएगा सर कैसे ये इंटीग्रल linear हो रहा है, तुम बोलोगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पे कर चुके हूँ, देखो। सो घर में देखोगे क्या ये, न हम बोल दूंगा, सेम टाइप का ही है। ट्राई सर, आई विल ट्राई। हाँ बाकी सब बोलो, बाकी जो है तुम बोलो, ये तुम कोशिश करोगे घर में, और नहीं तो हम बोल दूंगा। यस सर। कोशिश करोगे ना घर में? यस सर। हाँ करो, हम सॉल्यूशन तो दे चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया है यहाँ पे, डिफरेंशियल भी तुम कोशिश करो, ठीक है। और बहुत सारे मैं कर दिया हूँ यहाँ पे इवन फंक्शन का, हाँ वो भी देखो ध्यान से। ये जो देखो, ये जो और एक सिस्टम में ले लिया, वाई टी एक्स ऑफ टी माइनस टू प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टू, ये भी मैंने ले लिया, ठीक है। ये भी देखो, ये घर में तुम देखो, कोशिश करो, ये भी सिस्टम लिनियर है। तो 10-15 हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, ऑल आर लिनियर है कि नहीं, सब हम लोग लिनियर। तो तुम्हारे मन में एक डाउट आया, क्वेश्चन है क्या सर सभी सिस्टम थोड़ा लिनियर है क्या, नॉन लिनियर की नहीं है बाबा, बहुत सारा विल गो देयर। लिनियर के लिए हम लोग बहुत जो जो स्टाइल का जो एक्सप्रेशन है हम लोग ले चुके हैं, सबको ले चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, शिफ्टिंग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, सब कुछ। Now we'll take some example for non-linear. Please, my dear student, listen carefully. I am telling repeatedly for your betterment. I have given so many examples here. You practice all those problems. Okay, at least these problems for your semester exam. And if you have any doubt, you can raise your question. You can ask in the or class sessions. Not limited to class session, but some other time also, if I available, I will definitely help you. But तुमको कोशिश करना है पहले, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो नॉन लिनियर के लिए हम लोग और भी है, और एक दो प्रॉब्लम कर रहा हूँ। ये देखो y t इक्वल कॉस ऑफ एक्स टी है, क्या है कॉस ऑफ एक्स टी बाबू, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये देखो कॉस ऑफ टी नहीं है, कॉस ऑफ एक्स टी है, एक्स टी कॉस का अंदर में घुस गया। y it is equal to sin of xt, okay, y it is equal to tan of xt, y it is equal to sec of xt, some kind of that, okay। तो थोड़ा डिफरेंट तरीका है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है। देखो ये कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है, बोलो सर ये y ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ x ऑफ t है सर, कि सर x ऑफ t है? cos ऑफ xt, सर cos cos थीटा ऑफ है x ना, ऑफ t है। हाँ यस तो सर। cos थीटा है तो होता है ना, थीटा के अंदर में xt है, बेसिकली थीटा इज इक्वल xt है। सो ये थीटा इटसेल्फ फंक्शन ऑफ टाइम, गेटिंग माय पॉइंट, थीटा इटसेल्फ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम। ये दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स ए कॉम्प्लेक्स, these sort of expression is basically terms are called complex trigonometric form, complex trigonometric term। तो ये एक cos of xt है, ठीक है। तो हम
देखेंगे ये लीनियर है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आई हैव रिटन ऑलरेडी नॉन लीनियर, सो you understand that the system we must find out that non-linear, but how to get that expression? Formula is same है, so we'll try it. तो तुम क्या करोगे, y1t फाइंड आउट करोगे। सो पहले यू फर्स्ट फाइंड आउट y1t दैट इज cos ऑफ x1t, y2t cos ऑफ x2t। तो क्या होगा, y3t क्या होगा, अल्फा y1t प्लस बीटा y2t। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्या है, y1t का वैल्यू तुम लिख दो, y2 का वैल्यू लिख दो। सो दैट इज द एक्सप्रेशन व्हाट वी गेट फॉर राइट हैंड साइड, दैट इज y3t, alpha y1t plus beta y2t. These are, you keep in mind all these formula, these are fixed formula, you have to keep in your mind. So now we get expression number 1. Now what will you do, you will add the input, that is additivity, multiply alpha and beta simultaneously, that means homogeneity. So homogeneity and additivity एक साथ में क्या है, alpha x1t plus beta x2t। बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, दैट इज द नया इनपुट, दिस इज द न्यू इनपुट x3-t। तो न्यू इनपुट के लिए न्यू आउटपुट भी होगा। सो y3-t इज इक्वल टू क्या होगा, cos ऑफ x3-t होगा कि नहीं, y3-t इज इक्वल टू cos ऑफ x3-t। देखो y3-t is equal to cos of x3-t because x3-t is the new input here. Now क्या करोगे, cos थीटा जो है अंदर में x3-t का वैल्यू पुट करो, क्या है, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t। देखो ये है तुम्हारा y3-t, दैट इज 2 नंबर एक्सप्रेशन। ना देखो y3t एक नंबर इक्वेशन, y3-t 2 नंबर इक्वेशन, बोथ आर इक्वल है क्या, नहीं है, इसलिए सिस्टम इज नॉन लीनियर। ओके, सो सिस्टम इज नॉन लीनियर। तो मान लो तुम दिमाग में रखो y इज इक्वल टू cos ऑफ xt, sin ऑफ xt, tan ऑफ xt, sec ऑफ xt, cosec ऑफ xt, जब होगा ये नॉन लीनियर होगा, ठीक है। नाउ x स्क्वायर तो देखने से हमें मिल जाएगा, x स्क्वायर तो नॉन लीनियर ही तो है, x स्क्वायर जब होगा x ऑफ t स्क्वायर ये लीनियर है, बट x स्क्वायर t ये नॉन लीनियर। देखो y1t x1 स्क्वायर t, y2t x2 स्क्वायर t। सो y3t हम लोग मिल गया, अल्फा y1t प्लस बीटा y2t, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 1। न्यू इनपुट ले लो यहाँ पे, न्यू इनपुट दैट इज अल्फा x1t प्लस बीटा x2t। हर टाइम हम लोग सेम टू सेम कर रहे हैं, नो कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल, दीज आर सो सिंपल प्रॉब्लम। सो x3-t मिल गया। सो नया इनपुट के लिए नया इनपुट होगा, ये क्या रिलेशन है, सो y3t इज x स्क्वायर t। सो न्यू इनपुट क्या है, x3-t है, सो y3-t इज इक्वल टू x3-t स्क्वायर होगा, x3 स्क्वायर t होगा। तो देखो x3-t तुम्हारे पास है, y3-t इज इक्वल टू x3 स्क्वायर t, x3-t का वैल्यू तुम्हारे पास ये है, सो अल्फा x1t प्लस बीटा x2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर है, बट ये अल्फा x स्क्वायर t प्लस बीटा x2t स्क्वायर है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो सिस्टम इज नॉन लीनियर, सिस्टम इज नॉन लीनियर। ये भी देखो, नाउ yt इज इक्वल टू 4t प्लस 6t और yt इज इक्वल टू 2 प्लस 6t। ये देखने में बहुत इजी सा है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बोलो तो ये लीनियर है और नॉन लीनियर है। देखो मैंने लिख दिया नॉन लीनियर, वाई इट इज नॉन लीनियर, एक कंडीशन है, जब जीरो इनपुट होगा आउटपुट भी जीरो होगा। ओके, इनपुट जीरो है आउटपुट भी जीरो होगा, इफ ये सेटिस्फाई होगा देन सिस्टम इज लीनियर। नो इनपुट वी शुड हैव नो आउटपुट, if that maintains that is linear, if does not maintain non linear। तो यहाँ पे देखो yt is equal to 4t plus xt, xt इनपुट है, इनपुट को जीरो करो, yt 4t है, still the output is something, yt is equal to 2 plus xt, xt जीरो करो but yt is equal to 2 है। So when inputs are zero but still we are getting something out at output, then it is called non linear।
सो ये है conclusion. So remember, input, there is no input. If we get no output, the system should be linear. If output 0 है, input 0 है, but output में we are getting some values, definitely system should be non-linear. So these are the conclusion you have to remember every time for getting the linearity or non-linearity. So ultimately we have concluded some points. So we'll explain now. पहले हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन I never told you. Now you will understand. देखो, graph between input and output passed through a straight line passing through the origin without having saturation and deadline. You will never understand until unless I am showing you. ये देखो, मैं जो बोला मैं ये ड्रॉ करके रखा हूँ, ये नॉन लीनियर है। ये स्ट्रेट लाइन देखो जीरो से नहीं क्रॉस कर रहा है, जीरो से क्रॉस करनी है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। जीरो से नहीं क्रॉस किए हैं, देखो ये जीरो से क्रॉस कर रहे हैं, इट इज क्रॉस्ड थ्रू जीरो, इट पासेस थ्रू जीरो, बट स्टिल इट इज, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू सैचुरेशन है। सो जब सैचुरेशन होगा YTXT में, देखो सैचुरेशन, आउटपुट सैचुरेशन हो गया, ये जब होगा ये नॉन लीनियर होगा। इफ द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन ऑल्सो इट इज नॉन लीनियर। ये दो कंक्लूजन है। 3 नंबर है, ये डेड लाइन रहेगा तो देखो ये देखो ये सैचुरेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये डेड लाइन है। ये डेड टाइम, ये डेड टाइम होगा तो ये भी नॉन लीनियर होगा। डेड टाइम, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन और सैचुरेशन, इफ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग देन द सिस्टम इज नॉन लीनियर। सो एग्जाम में तुम्हारा इस तरफ तुम्हारा कुछ वेब फॉर्म होगा और ग्राफ होगा, सो वहाँ देखकर तुमको बताना है सिस्टम लीनियर और नॉन लीनियर है। तो क्या है, जीरो नहीं पास कर रहा है इसलिए नॉन लीनियर। द सिस्टम, the signal not the straight line not passing through the origin, so that's a non-linear system passing through origin, but it's having some saturation, the constant value है, is saturated हो गया, इसलिए नॉन लीनियर है। ये डेड टाइम है, देखो इस टाइम में कोई आउटपुट नहीं है, एक्शन का वैल्यू यहाँ पे दिस टाइम में कोई आउटपुट नहीं, ये नॉन लीनियर है, इसे डेड टाइम कहा जाता है। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, नो सैचुरेशन है, नो डेड टाइम है, इसलिए ये लीनियर सिस्टम है। ओके, सो ये जो 4 फिगर है ध्यान से रखिए, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी थ्रू आउट ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एंड मस्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होना चाहिए, विदाउट हैविंग सैचुरेशन नहीं होनी है, और डेड टाइम भी नहीं होना चाहिए। तो ये डेड टाइम क्या है मैं बता दिया, सैचुरेशन क्या है वो भी मैंने बोल दिया, ओरिजिन से पास करनी है वो भी मैंने बोल दिया, एंड स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर। सो ये 1 नंबर में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सेकंड क्या है, इफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरफ a d2 dn xt dta to the power n an minus 1 dn minus 1 xt dt n minus 1 प्लस डॉट डॉट करके a0 xt, ये दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये भी लिनियर होगा, क्योंकि ये an दीज आर द कोफिशिएंट है, and these are constant with time, so that's why the differential equation is also called linear। और एक जो है मैंने जो बोला, सिस्टम मस्ट फॉलो 0 इनपुट 0 आउटपुट क्राइटेरिया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो लास्ट जो एग्जांपल मैंने दिया हूँ तुमको वो यही था, इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होना चाहिए, इफ दैट हैपेंस देन सिस्टम इज लिनियर। और सिस्टम में आउटपुट है बट इनपुट 0 है, सो दैट इज नॉन लीनियर। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने तुमको बोल दिया, और बहुत सारा एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वेरी क्लियरली। किसी को भी डाउट है तो बोलो। सो लीनियर नॉन लीनियर तो खत्म हो गया,
किसी को भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम दूसरा सिस्टम में चले जाएंगे। आज ये सिस्टम में खत्म करके छोड़ूंगा। और 2 है, किसी को भी डाउट है लीनियर नॉन लीनियरिटी के लिए? बोलो। किसी को भी डाउट है क्या? नाम से पुकारनी है क्या? तो मैं क्या समझू? धीरेन्द्र? यस सर। हाँ बोलो, प्रॉब्लम है क्या, समझ गया लीनियर नॉन लीनियरिटी? यस सर, यस सर। ओके। ज्योति, ज्योति चौबे, ज्योति चौबे बोलो, सुनाई दे रहा है मेरा बात? यस सर। यस हाँ बोलो ज्योति चौबे बोलो, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, समझ गया ना तुम? यस सर। हाँ, लेकिन जब मैं उससे पूछ रहा हूँ समझ गया कि नहीं, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहा, तो तरीका ठीक नहीं। आई फील वेरी बैड। ओके, तो किसी को भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम ये टाइम थोड़ा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है? तो नया तुम लोग और एक लिंक दे रहा हूँ, 10 मिनट के लिए तुम ज्वाइन करो। ये भाटी भी नॉन नॉन इन्वर्टेबल सर है। अभी हम लोग का क्विज है सर। क्विज है? हाँ, यस सर। ओके, तो ठीक है, एमपीआई का सर क्विज भी है और असाइनमेंट भी है सर, आज ही सबमिट करना है तो। थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है? तो हाँ ठीक है, इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये जो मैंने Yes. बोला स्टेबिलिटी है, डायनामिक, तुम्हारा डायनामिक्स, ठीक है, स्टैटिक, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट, ये जो मेरे 4 बोल चुके हो, ये तुम ठीक से देखो। नेक्स्ट क्लास में किसी को भी डाउट है तो बोलो, ठीक है? ओके ओके सर, सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। किसी को भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो एडिट करके लेफ्ट हो जाइए। हेलो सर, डाउट होगा तो फिर आपको डायरेक्ट कॉल या हाँ हाँ मैसेज हाँ कर हाँ लेंगे। हाँ, मैसेज कर